Hello students. Today we are going to discuss data handling. This is chapter number 3 of class 7 mathematics. In class 6 also you have studied about data handling. In class 6 you have learned about collection of data, tabulation of data and presentation of data with the help of pictograph and bar graph. Now in class 7 we will discuss some more things about data handling. And the topics we are going to discuss are: first, arithmetic mean, or you can say average. Second, range of the data. Then mod of the data. Then median of the data, and lastly about the bar graph, observation, or you can say observing a bar graph or drawing a bar graph. In class 6 you just studied about how to draw single bar graph. Now in 7th there are double bar graph also. So the last topic is bar graph. In bar graph we will discuss observing bar graphs. बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना, उसको देख के आंसर्स बताना. दूसरा ड्राइंग बार ग्राफ्स, single bar graph and double, single and double. So these are the topics we are going to discuss in class 7. So first of all we will discuss arithmetic mean. For this I am taking one example. Suppose a cricketer scored the following runs in 6 innings. In first inning he scored 36 runs. These are innings and these are runs scored by him or her. In second he scored 35 runs. Third inning में 50 runs. Fourth inning 46 runs. Fifth inning 60 runs and sixth inning 55 runs. So these are the runs scored by a cricketer in 6 innings. Now suppose हम ये बात करना चाहें कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्रिकेटर की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो इसके लिए हमें अलग अलग बताना पड़ेगा. फर्स्ट इनिंग में उसके 36 रन थे, सेकंड में 35, थर्ड में 50, अलग अलग बताएंगे. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिस्कशंस और इंडिविजुअली वी विल टेलिंग द स्कोर ऑफ द क्रिकेटर इन ईच इनिंग. इट इज बेटर टू गिव आंसर इन द सिंगल वर्ड. उसको एक वर्ड में हम उसका आंसर दे सकते हैं. तो इन सारी इनिंग्स का एक आंसर, एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे 6 डेटास को रिप्रेजेंट कर सके, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, और वी कैन से अरिथमेटिक मीन, और वी कैन से एवरेज. और वो फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अरिथमेटिक मीन, और you can say average, sum of all the observations divided by total number of observations. Sum of all observations divided by total number of observations. So with the help of this we can find or we can calculate the arithmetic mean. So here we will
calculate this by using this formula. So according to this formula, we will add 36, 35, 50, 46, 60, 55. And these are 6 values. So we will divide this sum by 6. When we calculate the sum, इनका सम आएगा 282. और जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, the answer will be 47. तो एक वर्ड में हम ये बोलेंगे on an average or in the whole inning from 1 to 6, the performance of the cricketer is 47 runs. तो उसकी जो परफॉर्मेंस है 47 रन्स है. So this is the method to express the performance in a single observation. Single observation से हम परफॉर्मेंस को बता सकते हैं. Now this is arithmetic mean. Come to range. Range means कितना स्प्रेड हुआ है. तो ये जो डाटा है कितना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, तो इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज. तो रेंज मींस डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. Highest and the lowest observation. In these 6 observations, the highest observation is 60 and the lowest is 35. So we can say that the range of this data is, इस data की range कितनी होगी? 60 minus 35 and the answer is what? 25. तो अर्थमेटिक मीन क्या है कि द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा. फाइंड कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ व्हाट इज रेंज? कि कोई डाटा कितना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, तो उसका फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे. होगी दो चीजें आपको क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएंगी. तो आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल so that these things are more clarified to you. बहुत अच्छे से आपको और समझ में आ जाएंगे. कुछ डाउट अगर रह गया है तो, suppose in a school there are 10 teachers and the ages of the teachers are, question is like this, ages of 10 teachers in a school are, and these are in years, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 and 40. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the ages of 10 teachers in a school. अब इससे हम फाइंड करते हैं. क्वेश्चन लिखते हैं. What is the age of oldest teacher? What is the age of oldest teacher in the school? सबसे बड़े टीचर जिनकी एज सबसे ज्यादा है.
तो इन नंबर्स में से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 54। तो ये जो ओल्डेस्ट टीचर है स्कूल में उनकी एज है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 54 इयर्स। सेकंड, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर? जो सबसे यंग टीचर है, सबसे छोटी एज के टीचर है, उनकी एज कितनी है? तो द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ youngest teacher in the school? सबसे कम एज के जो टीचर हैं उनकी एज कितनी है? तो इनमें सबसे छोटा नंबर देखिए, इनमें सबसे छोटा नंबर आई थिंक 23 है। तो द आंसर विल बी 23 years. Now next question, what is the range of the data? डेटा की रेंज कितनी है? रेंज ऑफ द डेटा, अभी बताया था रेंज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट, कितना स्प्रेड है डेटा। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कितना था अभी हमने देखा 54, सबसे कम कितना है 23। तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा 54 माइनस 23। And what is your answer? The answer is 31. Next question. What is the mean of the data? इस डेटा का मीन कितना है? What is the mean of the data? फिर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, मीन का फॉर्मूला क्या? एक फॉर्मूला देखा था अभी हमने, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका जब आंसर हम फाइंड करेंगे तो उसको लिखेंगे मीन और एवरेज और अर्थमेटिक मीन, मीनिंग इज सेम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब इनको ऐड करेंगे 32 प्लस 41 प्लस 28 अप टू 40, तो ये हम लिखेंगे 32 प्लस 41 प्लस एंड द लास्ट इज 40। और कितने टीचर्स थे? 10 टीचर्स। इनका जब सम फाइंड करेंगे, सम आएगा 350 और डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 35। तो दिस इज द एवरेज एज ऑफ द टीचर इन द स्कूल, कि स्कूल में ऑन एन एवरेज जो टीचर की एज है वो कितनी है? वो कितनी है? 35। कुछ 35 से ज्यादा है, कुछ 35 से कम, लेकिन 35 क्या है? उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कि एवरेज कितना है। तो ये सेंट्रल वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट मिडिल वैल्यू के आसपास होती है, होती नहीं एग्जैक्टली लेकिन आसपास होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीचर्स हैव एज मोर देन द मीन एज? ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनकी एज मीन एज से ज्यादा है? How many teachers have age more than the average age? एवरेज एज हमारी कितनी आई थी? 35। 35 से ज्यादा एज कितने टीचर्स की है? तो यहां देखेंगे 35 से ज्यादा 1 2 3 एंड 4। 35 से ज्यादा, मोर, इक्वल नहीं, तो ओनली 4 टीचर्स। तो इसका आंसर आएगा 4। तो इस तरह से आप मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो ये आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को इस मेथड से कर पाएंगे। ओके।
Thank you.